ब्लैक बोर्ड विजिबल होने लगा आप सबको? यस सर। ओके। So in last class, basically we have studied what is the need of operating system, right? Where it is actually stored and how it is transferred from its primary from secondary memory to primary memory, right? Then we have also seen the role of post, that is power on self test, and also the role of bootstrap loader, and we have also seen various kinds of memories which are present in typical computing system. And yes, we have also seen about the functioning of boot process, right? So now we are in the position in the definition of operating system, right? Definition of operating system. There are various kinds of definitions that you can find in several textbooks, but I like this definition only. An operating system is a resource manager. It is a resource manager that acts as an interface between system application and user, right? तो सिस्टम एप्लीकेशंस हैं और यूजर के बीच में एज एन इंटरफेस काम करता है, राइट? बेसिकली इसका टास्क क्या होता है? रिसोर्स मैनेज करना, राइट? एंड व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द कंप्यूटर सिस्टम? Processor, memory, secondary memory, IO devices, and so on. Right? So this is a standard definition of operating system, which is complete. Right? Now we will move towards the next topic: types of operating system. Before types of operating system, as I have said that when power is switched off, operating system resides in secondary memory, right? But when we want to switch on our system, right, at that time, as soon as we have applied the power supply into the system, power on self test will be performed. What is the task of power on self test? That is post, to check whether all kinds of hardware components are in working condition or not, right? After post, the process of boot will be performed. And which component is going to perform this task? That is bootstrap loader. It is the responsibility of bootstrap loader to it is the responsibility of bootstrap loader to transfer the operating system from secondary memory to primary memory. ये responsibility bootstrap loader की है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर करे, राइट? और बूटस्ट्रैप लोडर कहाँ स्टोर होता है? रॉम में। स्पेसिफिकली बात कहें कि रॉम भी कई तरीके की होती है, तो ज्यादा सही है ई रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये एक तरीके का, ये जो बूटस्ट्रैप लोडर है, राइट, this bootstrap code is going to be stored in EEPROM.
right? This bootstrap code is also called as firmware. Firmware. We have already we already know what is hardware, what is software, right? All those components which you can touch and feel is hardware, like your processor, your keyboard, your memories. These all kinds of things you can touch and feel. But software is a logical concept, right? You write the code, and corresponding that code, when you execute that code, then it is a software, right? सॉफ्टवेयर के कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं कोड्स के, पर आप उसको टच नहीं कर सकते ना. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज अ सॉफ्टवेयर, राइट? बट देयर इज अनदर टर्म, firmware. Firmware, these are the software that you can write for note करके. A software written or burn on hardware is called as firmware. मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको बर्न कर दिया गया है. बर्न मतलब किसी हार्डवेयर कंपोनेंट पे फिक्स कर दिया गया है, उसको बोलते हैं फर्मवेयर, राइट? मतलब कि अब आप उसको बदल बदल नहीं सकते हो, राइट? और उस जो जहां पे इसको बर्न किया है या राइट किया गया है, उस कंपोनेंट का केवल फीचर यही है कि वो स्पेसिफिकली उसी सॉफ्टवेयर को ही अडॉप्ट करेगा, बाकी कोई और सॉफ्टवेयर उसके अंदर नहीं जा सकता है, राइट? That is why we are calling this as a firmware. So our bootstrap loader, this is only meant for storing at EEPROM. ये केवल EEPROM स्टोर हो सकता है और कहीं इसको स्टोर ही नहीं किया जा सकता. और EEPROM के अंदर बूटस्ट्रैप लोडर ही रहेगा और कोई हमारे टास्क वगैरह प्रोसेस वगैरह नहीं होते हैं. That's why we are calling boot loader or bootstrap code as a firmware. It is different from hardware and software. It is a combination of hardware and software, right? So software written or burned on hardware is called as firmware, right? So when once your boot process is completed, then your system is going to wait for indefinite amount of time, right? But between this waiting process and boot process, there is one function call which is getting executed. Can anybody tell me? जब आपका सिस्टम बूट कर जाता है, बूट प्रोसेस के बाद पहला कौन सा प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट होता है? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है. कोई बताएगा बिना गूगल किए हुए? ओके, चलो यही कंफर्म कर दो कि मेरी वॉइस ऑडिबल है. यस सर. ऑडिबल है ना? ठीक है. तो जब बूट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहला जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है उसका नाम है इनिट. इनिट init is a first process executed by operating system, by an OS, after process, and after executing it, OS will wait for an event.
जब आपका बूट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इनिट फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वेट स्टेट पे चला जाता है। किस लिए? ताकि यूजर या कोई प्रोग्रामर उसमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करे। इट माइट बी पॉसिबल दैट द यूजर इज इंटरेक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू द हेल्प ऑफ माउस ओनली, राइट? तो माउस को जैसे ही लेकर के आप लेफ्ट राइट ओपन घुमाते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग का सिग्नल किसके पास जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क क्या रहेगा? जो माउस का पॉइंटर है, जैसे आप माउस माउस को लेफ्ट राइट करोगे या आप टच पैड में अपनी फिंगर्स को लेफ्ट राइट करोगे, करस्पॉन्डिंगली आपका जो पॉइंटर डिस्प्ले हो रहा है उसको भी लेफ्ट राइट मूव कराना, राइट? It might be possible that you are performing some event like left click or double click, or you are using your keyboard for opening some file, right? Even though you don't have any kind of mouse, but still you can use the operating system with the help of your keyboard only. आप कीबोर्ड से ऑपरेट कर सकते हो ना, फाइल को सेलेक्ट करना, एंटर मार करके ओपन कर लेना, एरो का इस्तेमाल करके राइट क्लिक के फीचर अडॉप्ट कर लेना, ये सारा काम करते हो। सो दीज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड इवेंट्स। ये सब क्या है? इवेंट्स हैं। और इन्हीं का वेट कर रहा है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, so that it can take the action accordingly. Suppose you have performed the left click, so it will do the function corresponding to left click. कैसे? जब लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक करते हो तो फाइल खुल जाती है, एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। बट इंस्टेड ऑफ लेफ्ट क्लिक, इफ यू आर परफॉर्मिंग द राइट क्लिक, देन मल्टीपल ऑप्शंस हैव बीन शोन टू यू, राइट? कि ओपन करना है, कि चेक करना है, कि शेयर करना है, कि सेंड करना है, कि नेम करना है, ये सब राइट क्लिक में आता है, राइट? तो इवेंट के टाइप्स के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्शन लेता है, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, और ऑपरेटिंग सिस्टम होता कहां है, और कैसे प्राइमरी मेमोरी में आता है, ये अभी तक हमने पढ़ लिया है। किसी को यहां तो कोई डाउट? सर हाँ बताइए। सर फॉर्मवेयर एक बार और बता देते। फर्मवेयर इज अ सॉफ्टवेयर रिटन ऑन हार्डवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए लिखा जाता है उसे बोलते हैं फर्मवेयर। जैसे कि एक एग्जांपल बूटस्ट्रैप लोडर है। दूसरा एग्जांपल ऐसे आप सोच सकते हो, वॉशिंग मशीन हम अपने घर में यूज करते हैं, राइट? आजकल हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, ना कि मैनुअल वाला। ऑटोमेटिक वाला आप समझ रहे हो, केवल एक सिंगल यूनिट होता है, आप उसमें टाइमर सेट कर देते हो, आप उसमें सोप डाल देते हो, पानी का बस टैप ओपन कर देते हो, और जैसे ही आपने स्टार्ट बटन डाला वो खुद ही एनालिसिस कर लेता है कि कितना इसमें पानी डालना है, कितना सोप लेना है, कब पानी को ऑन करना है, कब पानी को क्लोज कर देना, और कब हमारा ये रिंसिंग वाला काम हो गया तो अब हम सोकिंग वाले में, स्पिन वाले में चले जाएं ताकि पानी वो कपड़े हमारे सूख जाए। आप कुछ नहीं करते हो ना। दैट मीन्स योर वॉशिंग मशीन हैज बीन ऑलरेडी प्रोग्राम्ड, पहले से ही प्रोग्राम बना करके उसमें डाला गया है। लेकिन क्या उस प्रोग्राम बना के डाला गया है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम मेमोरी इनसाइड द वॉशिंग मशीन, होगा कि नहीं? अगर आपका प्रोग्रामिंग किया हुआ है तो कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन के अंदर मेमोरी स्टोर हो, मेमोरी कंपोनेंट बना होगा। तो वो जो आपने कोड लिखा है, ठीक, इस वॉशिंग मशीन के लिए, तो वो कोड केवल उसी लोकेशन पे जहां मेमोरी होगी उसकी, उसी पे जाके स्टोर होगा और किसी जगह नहीं जाएगा, राइट? तो ऐसे कोड को बोलते हैं फर्मवेयर, क्योंकि वो हार्डवेयर कंपोनेंट के लिए केवल लिखी गई है, बाकी उसका कोई रोल नहीं है, राइट? ये अलग बात है कि वॉशिंग मशीन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के भी एम्बेडेड सिस्टम वाली कैटेगरी में जाता है, राइट? नॉट अ जनरल पर्पस कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक? तो हर वो सॉफ्टवेयर जो कि पर्टिकुलर हार्डवेयर कंपोनेंट के लिए ही लिखे गए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फर्मवेयर। चलो, सो अगेन जब हमारा इनिट फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होता है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू वेट फॉर सम इवेंट, and that event will always be in the form of some interrupt. For an event, यहाँ event की बजाय event लिख दिया है मैंने, उसको सही कर लेना, event और interrupt और interrupt किसी इवेंट के लिए या इंटरप्ट के लिए वेट करेगा, एंड दैट इवेंट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्ट।
since you have studied the digital electronics, so now I will ask you, what is an interrupt? बताओ भाई, what is an interrupt? Sir, it is the signal given by the hardware. It is a signal given by the hardware. So interrupt is a signal, ये बात तो सही है, but given by the hardware it is not always the correct. How? It might be possible that your program is generating interrupt. So program is a software component. जब प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ही नहीं है, तो ये जरूरी तो नहीं है कि हार्डवेयर से जनरेट हो. आपको समझ में आता है कि माउस से अच्छा डबल क्लिक करके तो हार्डवेयर में इंटरप्ट है, राइट? बट इट माइट बी पॉसिबल दैट कि आपका प्रोग्राम ही कुछ इंटरप्ट कर जनरेट कर दे, कोई सिग्नल सर, जनरेट उसे कर हम सिस्टम कॉल कहते हैं सर. दे. सिस्टम कॉल नहीं कहते हैं, सिस्टम कॉल इज अनदर थिंग. एनीथिंग एल्स? करंट एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दे. चलो एग्जाम्पल देता हूँ. सही बोला, लेकिन 10% जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी वो चीज नहीं बोला आपने. करंट एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दे, बट टेम्परेरली. ये नहीं कि रोक दे, तो वो तो पॉज हो गया ना. टेम्परेरली हॉल्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, आप यूनिवर्सिटी में खेल रहे हो, ठीक है, आराम से अपने आपस में खूब हंस के खेल रहे हो. जनरली एक फैकल्टी गुजरता है तो आप लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हो, क्या कोई चीज हम ऐसी न बोल दें कि जो फैकल्टी सुन जाए और फिर बाद में हमको ताना मारे, राइट? तो आप अपने एग्जीक्यूशन को टेम्पररीली स्टॉप कर दिया. आप उसको रोकते नहीं हो, बस कुछ देर के लिए चुप हो जाते हो. जैसे ही वो आपके आसपास से आगे बढ़ जाता है, आप वापस से वही जो लास्ट सेंटेंस बोला था वहीं से शुरू करते हो, राइट? सो यू हैव स्टॉप योर कन्वर्सेशन टेम्पररीली. इट इज एन इंटरप्ट. इसी तरीके से अगर आप घर में हो, ठीक, कुछ अपना पढ़ाई कर रहे थे, अचानक मम्मी ने कहा कि मम्मी कि जाओ जरा ये सब्जी ले आना या मैं जाकर के खरीद के ले आना, तो आप अपनी इस पढ़ाई में अगर आइडियल बच्चे हो तो आप थोड़ा सा कॉपी किताब साइड में रख करके आप जाते हो. तो आपने अपने पढ़ाई को सस्पेंड किया टेम्पररीली, गए वो सामान ला करके दिया, वापस से आकर के जहां पे आपने छोड़ा था वहीं से शुरू कर देते हो, right? Similarly, in the computing system or computer system, all the things are getting executed by the processor. जो कुछ भी है सब प्रोग्राम के फॉर्म में प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं. तो इंटरप्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस के सेंस में ये है कि जब आप कंप्यूटिंग का जो नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको टेम्परेरली डिस्टर्ब कर दो या रोक दो टेम्परेरली, तो इसे कहेंगे इंटरप्ट. तो इंटरप्ट किसी के थ्रू भी जनरेट हो सकता है. फॉर एग्जांपल, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वेट कर रहा था, आपने मोबाइल अपना माउस का पॉइंटर हिलाया, उससे भी जनरेट हो गया. आपने अपने कीबोर्ड का कोई की प्रेस किया तो आपका की के थ्रू इंटरप्ट जनरेट हो गया, राइट? इट माइट बी पॉसिबल दैट यू आर यूजिंग योर सिस्टम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम and you have deployed correct cooling system. In that scenario, temperature of your desktop can be very high, right? और जब टेम्परेचर लैपटॉप का बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा इमीडिएटली. ये कोड रेडी लिखे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में. तो इस सिनेरियो में किसने इंटरप्ट जनरेट किया? आपके सिस्टम ने खुद ही इंटरप्ट जनरेट कर लिया. दिस इज कॉल्ड इंटरनल इंटरप्ट. यू विल स्टडी डिटेल ये इंटरप्ट की चीजें सारी डिटेल में आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरप्ट एक सिग्नल या इवेंट है जो आपके नॉर्मल फ्लो को टेम्पररीली रोक देता है, ठीक है? सो यू कैन राइट इट एज एन इंटरप्ट is a signal or event that stops the current execution of program temporarily. जिस
चीज के नीचे मैं ऐसे थोड़ी सी जिगजैग लाइन बनाऊं तो आप समझ लेना कि मैं श्योर नहीं हूं कि स्पेलिंग वही होगी, राइट। Stop the current execution of program temporarily, right? So here we have used program term. Now you tell me what is the program. प्रोग्राम क्या होता है? सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। बताओ भाई, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्रामिंग कर भी गए, बीटेक के सेकेंड ईयर में आ गए, अब तो सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, तो प्रोग्राम बताओ क्या होता है? सर स्क्रिप्ट दैट कंप्यूटर। क्या? फिर से बोलो। स्क्रिप्ट कंप्यूटर। किसी और को इनकी वॉइस समझ में आ रही है? एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आ रही है, शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है। मैं स्विच कर लेता हूँ जरा। सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है एकदम क्लियर, या कुछ ब्रेक वगैरह है? यस सर। एकदम क्लियर सुनाई पड़ रही ना? हाँ। अब यस जिसने बताया था मुझे बोले कि सर। क्या प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है। किसी और को इनकी आवाज सुनाई पड़ रही है कि इन्होंने क्या कहा? नहीं The सर। collection of instruction. हाँ, तो इसका मतलब उनका नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है, मेरा नेटवर्क ठीक है। कोई और बताएगा उनके अलावा? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी ने बोला, तो जिन्होंने बोला कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसके अलावा कोई बताना चाहेगा कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन के अलावा भी कुछ है? सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। So the program is a executable software that's run in a computer. Okay, so this is a set of instruction which I have written. All of you will agree or not? I have written few set of instructions. किसी को दिक्कत? बताओ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही लिखा है या नहीं? सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है बट किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है ये। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। तो आप प्रोग्राम में अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल दोगे वो तो गलत है ना, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम इज नॉट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन लॉजिकल मैनर। और लॉजिकल मैनर क्या है? सबसे पहले मेन होगा, फिर करली ब्रेसेस होंगी, राइट, ये वाली, फिर आप इंट ए लिखोगे, देन ए इक्वल टू 7, देन प्रिंट एफ, देन करली ब्रेसेस क्लोज। ये है ना लॉजिकल। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड instructions, or alternatively you can say program is a set of instruction which is written in logical manner, right? This is called as program. बताइए, आप सेकेंड ईयर में आ गए और पता नहीं आप लोगों ने बुक भी ठीक से नहीं पढ़ी कि क्या लिखा है प्रोग्राम की डेफिनेशन में। चलो ठीक है। तो बेसिकली ये रही, whatever programs you will write, all
programs will be stored in your secondary memory, right? When you press the control save button, your program is going to be saved at secondary memory location, right? जो आपका hard disk है वहां store होता है. But when you want to execute your program, then operating system need to transfer that program from secondary memory to primary memory, because operating system या CPU हमेशा उन प्रोसेसेस को, उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है जो कि मेन मेमोरी में होंगे, राइट? तो ये रही मेन मेमोरी. ध्यान से समझते जाना सारी चीजें. अगर पूरी क्लास में अच्छे से समझ के करोगे, तुमको गेट में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा. जितना चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है. बस अब तुमको उस पे बेस्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी न्यूमेरिकली, पर थ्योरेटिकली साउंड रहोगे. मेन मेमोरी ये रही मेन मेमोरी, जिसको आप रैम कह रहे हो, राइट? तो जो कुछ भी एग्जीक्यूट करना है उसको मेन मेमोरी में लाना ही पड़ेगा हार्ड डिस्क से, ठीक? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो भी एक सॉफ्टवेयर है ना, एक प्रोग्राम है, तो उसको भी आपको मेन मेमोरी में लाना ही पड़ेगा ना. तो आप मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाते हो कैसे? बूट प्रोसेस के थ्रू. तो अब यहां पे क्वेश्चन उठा, कोई मुझे बताएगा कि अपने विंडोज 10 की साइज कितनी है? विंडोज 10 की साइज कितनी है जब वो रन सर करता है? आईएसओ फाइल, अच्छा जब सर वो रन आईएसओ करता फाइल है, साइज, आईएसओ फाइल नहीं, आईएसओ फाइल तो उसका इंस्टॉलेशन वाली फाइल है ना. मैं कह रहा हूं विंडोज 10 जब रन करता है तो फुल फ्लेज में वो लगभग कितनी जगह लेगा? सर 25 से 40 जीबी लेता है सर. 25 से 40 जीबी, ठीक है, क्योंकि कहता है ना कि जिस ड्राइव में आप इंस्टॉल कर रहे हो उस ड्राइव की साइज कम से कम 20 जीबी या 25 जीबी, इस तरीके से मैसेज आता है कि इतनी तो मिनिमम होनी चाहिए. तो 40 जीबी शायद पहले जो विंडोज विस्टा था और विंडोज 7 ये सब 20 जीबी में हो जाते थे, राइट? लेकिन जब से विंडोज 10 आया हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ गई, राइट? तो अब बताओ, ये जो 20 जीबी 30 जीबी 40 जीबी इतनी ज्यादा स्पेस है. एक बात और, आपके कुछ मित्र वगैरह क्लास में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक? तो बेटर ये है आप उनको समझा देना कि अगर 12 बजे क्लास है तो 12:05 पे लिंक नहीं, फिर मैं बार बार जाऊंगा और एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि क्लास चल रही होती है. तो आप उनको बता देना कि कल से 12:05 के पहले ही ज्वाइन कर लें, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की साइज तो 40 जीबी 45 जीबी इस तरीके की है, और आप कह रहे हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में होना जरूरी है क्योंकि प्रोसेसर जो कुछ भी एग्जीक्यूट करता है मेन मेमोरी से एग्जीक्यूट करता है. और मेन मेमोरी की साइज आपके सिस्टम में कितनी होती है टिपिकली बताओ? जो मेन मेमोरी है उसकी साइज कितनी होगी? सर 4 GB या 8 GB ऐसे रहता है. हाँ, 2 GB 4 GB, कोई थोड़ा सा अमीर हुआ तो 8 GB, ज्यादा अमीर हुआ तो 16 GB. इससे ज्यादा वाला पढ़ाई करेगा नहीं, तो 16 GB के ऊपर वाले में नहीं जा रहे. जो इससे ज्यादा अमीर होगा वो पढ़ेगा ही क्यों? उसका तो बिजनेस चल रहा होगा, ठीक? तो जब आपके रैम यानी मेन मेमोरी की साइज 2 GB से लेकर के 16 GB है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि 40 GB का था इसके अंदर कैसे आ सकता है? सवाल उठा ना. ये बात लॉजिकल है. इसका एक ही और मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरा का पूरा 40 GB है या 45 GB है, हम पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी के अंदर नहीं लाते, उसके कुछ पोर्शन को ही अंदर लाते हैं मेन मेमोरी के अंदर, राइट? तो सवाल उठा किस कंपोनेंट को लाएंगे? तो एक नया टर्म आया, इट इज कॉल्ड एज कर्नल और मॉनिटर. कर्नल और मॉनिटर. सो kernel is that part of operating system which consists of essential component only and resides in main memory permanently. कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कंपोनेंट है जो कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जितनी चीजें चाहिए उनके इसेंशियल कंपोनेंट से मिलकर बना हो, ठीक? और साथ में हमेशा मेन मेमोरी के अंदर
वो रहे, उसको बोलते हैं कर्नल। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके के सिस्टम में डिप्लॉय हुआ है, कि कभी शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट होती है, कभी आईओ डिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, कभी फाइल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट के बेसिस पे हर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल अलग अलग हो सकता है। ठीक, जैसे कि मैं, जो लोग मिसाइल नेविगेशन सिस्टम में काम करते हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल कुछ और होगा। जो लोग पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं उनका कर्नल अलग होगा। अपने मोबाइल, जो एंड्रॉयड मोबाइल है, इसका कर्नल अलग होगा, क्योंकि कर्नल क्या होगा, जो इसकी रैम में हमेशा रहे और पूरी चीजों को कंट्रोल करे। पर वही चीज पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम या मिसाइल नेविगेशन सिस्टम या वॉशिंग मशीन के सिस्टम में तो काम नहीं कर रही होगी ना। तो इसलिए कर्नल का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है कि यही सारे कंपोनेंट होंगे। वैसे कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, देखो, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक, प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद क्या कहते हैं आपका फाइल मैनेजमेंट, फिर आपका आईओ डिवाइसेस मैनेजमेंट, फिर प्रोटेक्शन, शेयरिंग। तो इस तरीके से वेरियस कंपोनेंट होते हैं, राइट। पर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराना है तो प्रोसेस मैनेजमेंट और आईओ मैनेजमेंट ये तो दोनों चाहिए ही होंगे, राइट। पर अगर आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से डील कर रहे हो तो फाइल मैनेजमेंट भी चाहिए होगा, राइट। लेकिन अगर आप पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में जा रहे हो तो आपको फाइल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट और प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है इन दोनों कंपोनेंट की, क्योंकि पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में कोई फाइल का मैनेजमेंट होता ही नहीं है। वहां तो आईसीयू में पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, वो जो डिस्प्ले लगा होता है जिसमें हार्ट बीट बताता है और क्या कहते हैं ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बताता है, फिर कई तरीके के ग्राफ बन रहे होते हैं, तो उसमें फाइल स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती है, राइट। तो वहां पे फाइल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम आपका क्या कहते हैं हाँ, वो सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, कोई और यूज नहीं करता है, तो सिक्योरिटी वाला जो कंपोनेंट होता है वो भी हमें नहीं चाहिए, राइट। तो ये हुआ अपने पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कह रहे हैं। लेकिन जब हम अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे आते हैं तो सिक्योरिटी एकदम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। तो कर्नल हमारा हर एक डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट से की वजह से डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी कर्नल की, वो ये होगी, कर्नल कर्नल और मॉनिटर इज दैट, या कर्नल consist of essential component of operating system that resides in main memory permanently। मतलब कर्नल या मॉनिटर हमेशा मेन मेमोरी के अंदर रहेगा। तो हम जिस चीज को अभी ओएस लिख रहे थे वो इनफैक्ट है क्या, वो है कर्नल, राइट। कर्नल के बाद जो एरिया होता है मेन मेमोरी में उसको बोलते हैं यूजर एरिया। यूजर एरिया, यहाँ पे यूजर के एप्लीकेशंस रन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्राम्स नहीं। यहाँ पे यूजर के एप्लीकेशंस रन करते हैं, जबकि कर्नल वाले स्पेस में ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस रन करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में हमें कुछ जगह छोड़ी जाती है। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम ब्रीदिंग स्पेस। कर्नल
के और यूजर एरिया के बीच में कुछ स्पेस हम छोड़ देते हैं, रिजर्व कर देते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम ब्रीदिंग स्पेस। क्यों छोड़ते हैं, इसका आंसर देखो। Suppose at one time when we are using our typical desktop system, जब हम अपना typical desktop system यूज कर रहे हैं, तो हमें हो सकता है हमारे कर्नल में केवल प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, राइट, और शेयरिंग, ये तीन कंपोनेंट ही चाहिए हो। तो ये तीनों कंपोनेंट कर्नल के अंदर होगा, राइट। बट इन फ्यूचर हो सकता है कि जब हम इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज करें तो हमें सिक्योरिटी कंपोनेंट को भी अंदर लाना पड़े, राइट। तो अगर आपका इतना स्पेस कर्नल के लिए था जो कि तीन ही थे, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड शेयरिंग, बट अब फ्यूचर में आपको सिक्योरिटी वाले कंपोनेंट को भी अंदर मेन मेमोरी के लाना है, तो कर्नल फिर एक्सपेंड होगा या नहीं होगा, बोलो। कर्नल एक्सपेंड होगा। तो कर्नल एक्सपेंड तभी हो पाएगा ना जब आप थोड़ा सा ये जो ब्रीदिंग स्पेस है उसको छोड़ रखोगे, राइट। इसी तरीके से कल कुछ मान लो फाइल मैनेजमेंट हमें नहीं चाहिए, तो फाइल मैनेजमेंट को हम बाहर निकाल देंगे मेन मेमोरी से। बाहर निकाल देंगे तो कर्नल अब कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मतलब कर्नल का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इज वेरी मच सिमिलर विद आवर ब्रीदिंग प्रोसेस, क्योंकि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्रीद आउट करते हैं तो एक्सपेंड होते हैं, राइट। तो अगर हमें थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे ब्रीदिंग स्पेस, तो हमारा कर्नल आसानी से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा। क्यों हो सकेगा, क्यों हमें छोड़नी है, ये मैंने बता दिया। सबको क्लियर हुआ, हाँ या ना? यस सर। चलो यही कंफर्म कर दो कि वॉइस आ रही है कि नहीं मेरी। सर सारे प्रोसेसेस Yes, एक sir. साथ कर्नल में लोड हो पाएंगे कि नहीं? नहीं, सारे कंपोनेंट एक साथ कर्नल में नहीं, फिर तो पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ना, वही 40 GB 35 GB। हमेशा जितने पोर्शन की हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही पार्ट कर्नल के अंदर आएगा। फिर जो फ्यूचर में जरूरत पड़ती जाएगी तो हम कंपोनेंट को अंदर लाएंगे और जो कंपोनेंट का काम हो गया उसको बाहर ले जाएंगे, ठीक है। ओके सर। तो ये रहा आपके कर्नल की डेफिनेशन और यूजर एरिया, राइट। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा घर जाकर के बुक पढ़ो और क्वेश्चन पूछो, ठीक है। नहीं पूछोगे, नहीं पढ़ोगे, नुकसान तुम्हारा है, ठीक है। और अभी तक जैसे भी तुम लोग पास हुए हो मुझे नहीं पता, और कुछ पेपर्स का तो मुझे आइडिया भी है। आगे अब कंप्यूटर साइंस वाले पेपर्स शुरू हो चुके हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाएगा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब फेल हो गए और तीन तीन अटेम्प्ट में, तो फिर बीटेक कोर्स से बाहर हो गए, और यहाँ पे हुए भी हैं पिछले वाले बैच में, अगर पता करो तो पता चल जाएगा। तो इसलिए सीरियस होकर के पढ़ना, सब कुछ समझते रहना। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, साइलेंट रह करके अपना, ठीक है, पास एडिशन नहीं हो पाओगे। और ये बात मैं क्लियर कह दे रहा हूँ, मेरे पेपर में साइलेंट रह करके बिना पढ़े पास नहीं हो सकते। तो इसलिए बेटर ये है कि जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पूछते हुए चलो, ठीक। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, there are few concepts which I want to know from your side. There are few terms like job, task, and program. What is the difference between these three terms? बताओ। जॉब, टास्क, प्रोग्राम, ये तीनों टर्म सुने हैं या नहीं सुने कभी? सर जॉब ऐसा चीज है जिसके लिए हम पेड मतलब पेड वर्क कह सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के टर्म में बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट के टर्म में नहीं। कंप्यूटर साइंस में जॉब, टास्क और प्रोग्राम।
सर जॉब करने का मतलब कि आपको यही काम परफॉर्म करना है। तो वही तो प्रोग्राम होता था, प्रोग्राम में भी तो हम कुछ काम को करते हैं, क्या अंतर है? देखो, ये तीनों टर्म तब दिए गए जब मेमोरी कॉस्टली हुआ करती थी। ठीक है, मेमोरी मतलब रैम या स्टोरेज डिवाइसेस कॉस्टली हुआ करते थे, राइट? तब ये तीनों टर्म दिए गए और कहा गया ये तीनों है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही, ये तीनों ही है तो प्रोग्राम्स ही, लेकिन जॉब की साइज ग्रेटर होगी टास्क से, टास्क की साइज ग्रेटर देन प्रोग्राम होगी। तो मतलब तीनों ही एक तरीके से प्रोग्राम्स हैं, लेकिन किसी की साइज बड़ी है, किसी की साइज छोटी है, और इनके बीच कैसा रिलेशन है? जॉब की साइज ग्रेटर देन टास्क की साइज इज ग्रेटर देन प्रोग्राम की साइज, राइट? बट आज के सिनेरियो में जब मेमोरी कॉस्टली नहीं है, आपको याद होगा शुरू में 1 MB की मेमोरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती थी। आज हम 1 TB भी की मेमोरी खरीदते हैं तब भी वो उस जमाने की 1 MB से ज्यादा सस्ती, कहीं ज्यादा सस्ती पड़ जाती है, राइट? तो जैसे जैसे कंप्यूटिंग सिस्टम का इवॉल्वमेंट होता गया, मेमोरी चीपर होती गई, राइट? और उस सिनेरियो में ये जॉब, टास्क और प्रोग्राम, ये तीनों ही टर्म एक ही हो गए। तो अगर कोई प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो उसको जॉब कह दो या बड़ा प्रोग्राम कह दो, कोई अंतर नहीं पड़ता, राइट? तो जॉब, टास्क, प्रोग्राम आज के सिनारियो में एक ही बात है, लेकिन जब मेमोरी कॉस्टली हुआ करती थी उस टाइम पे ये कन्वेंशन था कि जॉब की साइज टास्क से ज्यादा होगी, टास्क की साइज प्रोग्राम से ज्यादा होगी, और तीनों ही होंगे तो प्रोग्राम। ठीक, तो पहला कंसेप्ट तो ये है। आगे बढ़ते हैं। There are three terms again: multi-programming, multitasking, and multiprocessing. ये तीन टर्म, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, क्या है ये तीनों? बताओ। कोई बताएगा? Sir, multi-programming is means more than one processes at a time. मोर देन वन प्रोसेसेस एट अ टाइम। ये प्रोसेस क्या है? व्हाट इज प्रोसेस? वी नो व्हाट इज प्रोग्राम, ठीक है, पर प्रोसेस क्या है? तो अगर आपको प्रोसेस नहीं पता तो फिर मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं डिफाइन कर सकते। खैर, आपने अभी गलत आया है, मोर देन वन प्रोसेस से डिफाइन नहीं करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को। ये अलग बात है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में मोर देन वन प्रोसेस होते हैं, लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को मोर देन वन प्रोसेस से डिफाइन नहीं करते हैं। एनीबॉडी एल्स? So steps we follow to perform any task. स्टेप्स वी फॉलो टू परफॉर्म एनी टास्क? नहीं, ये पर मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है। पहला जिन्होंने आंसर बताया था, क्या नाम है आपका? Sir, Ayush. हाँ, Sir, Ayush. आयुष। और दूसरा आंसर किन्होंने बताया? Sir, yeah. Sir, I said answer of what is process. अच्छा, प्रोसेस का नहीं, ये आंसर गलत है, प्रोसेस का ये आंसर नहीं है, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? चलो, अब मैं जो जो आंसर दिया करेगा मैं उसका नाम भी पूछता जाऊंगा ताकि मेरे दिमाग में स्टोर रहे, ठीक है। ये सब चीजें इंटरनल में काम आती हैं, जो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं।
तो उसमें पता चलता है ना कि आप इंटरेक्टिव हो या नहीं, क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं। ओके, तो मल्टीटास्किंग कोई बताना चाहेगा? चलो, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, तीनों में से कोई एक, कोई भी बताना चाहेगा? सर अगर दो प्रोग्राम होगा तो एक ब्लॉक कर देंगे और दूसरे को करेंगे तो मल्टी प्रोग्रामिंग हो सकता है। दो प्रोग्राम होगा तो एक को ब्लॉक कर देंगे। पहले को यस सर। ब्लॉक वर्ड तो आपने सही बोला है, लेकिन आपने तरीका गलत बताया है। मतलब कंसेप्ट आपका टर्म सही है लेकिन कंसेप्ट गलत है। आयुष बोल रहे हो ना, या कोई और? क्या नाम है तुम्हारा? सम्राट। 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 देखो, इन तीनों में ही, चाहे वो मल्टी प्रोग्रामिंग हो, चाहे मल्टीटास्किंग हो, चाहे मल्टी प्रोसेसिंग हो, इन तीनों में मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। मोर देन वन प्रोग्राम is getting executed, चाहे वो मल्टी प्रोग्रामिंग हो, चाहे मल्टीटास्किंग हो, या मल्टी प्रोसेसिंग हो, तीनों में ही मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन इनके एग्जीक्यूशन का तरीका अलग अलग होता है। कैसे? Suppose you have program, right, and you are executing this on a CPU, right? This one is your program. प्रोग्राम ए को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया था, धीरे धीरे ये एग्जीक्यूट हो रहा था, राइट? एग्जीक्यूट हो रहा था। इस स्टेज पे जाकर के जब क्लॉक की इधर पे पहुंची, एट दैट टाइम प्रोग्राम ए रिक्वायर्स एन आईओ, इनपुट आउटपुट डिवाइस, राइट? ऐसा सिचुएशन होता है ना कि आपके प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट से कभी कभी जरूरत पड़ती है। वो, फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव रिटन सम प्रोग्राम दैट रिक्वायर्स टू रीड सम फाइल, राइट? एंड दैट फाइल इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी, तो सेकेंडरी मेमोरी से आपको प्राइमरी मेमोरी में इनपुट आउटपुट देना पड़ेगा ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके प्रोग्राम को प्रिंटर से कुछ लेना है, कुछ स्कैनर से लेना है, राइट? तो इसका मतलब यह है जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर अपना कोड तो एग्जीक्यूट होता ही है, उसके साथ इनको आईओ की भी रिक्वायरमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा एक्सेस करने की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसको मैं आईओ बोल रहा हूं, राइट? सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्रोग्राम ए रिक्वायर्स एन आईओ, राइट? अब मुझे बताओ, प्रोसेसर ज्यादा फास्ट है या आईओ डिवाइस ज्यादा फास्ट है? सर प्रोसेसर। प्रोसेसर। प्रोसेसर स्पीड इज मच हायर एज कंपेयर टू आईओ डिवाइसेस, राइट? तो ऐसे सिनेरियो में प्रोग्राम ए का इतना पोर्शन तो तुरंत एग्जीक्यूट हो गया जितना मैंने बॉक्स के अंदर ड्रॉ किया है। उसके बाद प्रोग्राम ए वेट करेगा, किसका? आईओ का, राइट? और फिर मान लो इस स्टेज पे इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा मिल गया, तो प्रोग्राम ए फिर से एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली यहां पे खत्म हो जाएगा, राइट? तो इस टाइम में पूछा सीपीयू कितनी देर के लिए आइडल रहा, तो आप कह दोगे ना सीपीयू आइडल टाइम कितना है, इतना पोर्शन, जितना डॉटेड लाइन था इतना पोर्शन हमारे सीपीयू आइडल बैठा रहा और कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोग्राम ए ही था और प्रोग्राम ए मेन मेमोरी के अंदर था, प्रोग्राम ए को एग्जीक्यूट किया, फिर उसको आगे एग्जीक्यूट होने के लिए आईओ चाहिए था, इसलिए रुक गया। जब वो आईओ मिल गया फिर वापस उसको एग्जीक्यूट करके खत्म किया, राइट? पर सपोज करो कि आपके पास प्रोग्राम बी है, एक आपके सेकेंडरी मेमोरी में है, ठीक?
अब उस प्रोग्राम बी को जब आपका देखो ध्यान से, ए को आईओ की रिक्वायरमेंट हो, जब ए का एग्जीक्यूशन रुक जाए, ठीक, ए कहां चला जाए, आईओ परफॉर्म करने, तब आप प्रोग्राम बी को शेड्यूल करोगे। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है। when execution of A get stopped because A requires some IO, then only you are scheduling another program B to get executed by the processor, right? और आपने B को शेड्यूल कर दिया, B का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। हो सकता है इस प्रोग्राम B को भी आईओ की रिक्वायरमेंट पड़े, अब इसको आईओ की रिक्वायरमेंट पड़े तो अब ये भी वेट करने लगेगा। और सपोज करो कि इसका आईओ यहीं पे ही खत्म हो गया, तो प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट फिर से करेगा और फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, राइट? तो इस सिनेरियो में आइडल टाइम कहाँ रहा, इतना पोर्शन। तो इफेक्टिवली देखो, इफेक्टिवली सबसे पहले आपने ए को शेड्यूल किया, ए शेड्यूल हो गया, फिर उसके बाद जब वो वेट करने लगा तो बी को शेड्यूल कर दिया, और बी के बाद फिर आपने बी का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो आपने ए को शेड्यूल कर दिया, राइट? तो अब आइडल टाइम कितना हो गया, इतना। तो देखो इनिशियली आइडल टाइम ज्यादा था ना, ये देखो ग्रीन कलर से मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं, दिस वन इज होल आइडल टाइम, राइट? लेकिन जब आप बी की मदद से मल्टी प्रोग्रामिंग डिप्लॉय कर रहे हो तो अब आइडल टाइम कम हो गया ना, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेसर इज गोइंग टू बी इंप्रूव। आप प्रोसेसर का बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग। ध्यान से सुनना, when one program is stopped because it requires, और when one program is blocked, जब आईओ की रिक्वायरमेंट होती है तो प्रोग्राम ब्लॉक हो जाता है, तो ब्लॉक हो गया एंड इट रिक्वायर्स एन आईओ, राइट? यू आर शेड्यूलिंग अनदर प्रोग्राम, यू आर taking another program and giving it to the processor in order to execute, then it is called as multi-programming. तो इफेक्टिवली देखो यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोग्राम हुए ना, कितने प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं एट अ टाइम, 2 प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं इफेक्टिवली, प्रोग्राम ए और प्रोग्राम बी, ये दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना। पहले ए को एग्जीक्यूट हुआ थोड़ा सा पोर्शन, फिर बी का थोड़ा सा पोर्शन, फिर दोनों ने आईओ कंप्लीट किया और बी का थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन, देन ए का पोर्शन, राइट? तो पूरे के पूरे इतना इंटायर ड्यूरेशन में इफेक्टिवली कितने प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुए हैं, 2 प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुए हैं। किस तरीके से कि जब वन प्रोग्राम ब्लॉक हुआ दूसरा प्रोग्राम शेड्यूल हुआ, इट इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग। बात समझ में आई, राइट? इट इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग, and the operating system which is based on multi-programming concept is called as multi-programming operating system. ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पे बेस्ड हो उसको बोलेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, मल्टीटास्किंग पे आते हैं। एक बार कंफर्म करना कि वॉइस ऑडिबल है कि नहीं। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग में आप ऐसे समझो, इस एग्जांपल को समझने के लिए आपके पास 2 प्रोग्राम थे, एंड प्रोग्राम बी। अच्छा, ऊपर वाले जो 2 प्रोग्राम थे, इसको अगर और आइडल टाइम को और कम करना होगा तो हम तीसरे प्रोग्राम को शेड्यूल कर देंगे ना, राइट? तो जैसे Yes, जैसे sir. आप प्रोग्राम नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को बढ़ाते जाओगे, प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा। यही तो हुआ ना। अच्छा, इसमें प्रोसेसर कितने थे? एक ही प्रोसेसर था ना, एक से ज्यादा प्रोसेसर नहीं था। अब देखो, आपका 2 प्रोग्राम है, प्रोग्राम ए एंड प्रोग्राम बी, राइट? मान लो ए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए 30 यूनिट चाहिए और बी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए 20 यूनिट चाहिए, और आपके पास एक ही प्रोसेसर है, ये है रहा आपका माइक्रो प्रोसेसर,
राइट। तो सबसे पहले प्रोग्राम ए को शेड्यूल कर दिया हमने किसके प्रोसेसर के ऊपर, ठीक, और इसको हम केवल 10 यूनिट तक ही एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। तो ये कितना बच जाएगा, कितना बचेगा बताओ, अगर प्रोग्राम ए को उठा करके माइक्रो प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट किया, इसको टोटल 30 यूनिट चाहिए, टाइम चाहिए था, 30 सेकेंड तक एग्जीक्यूट होना था, इसको 20 सेकेंड तक एग्जीक्यूट होना था, लेकिन मैं इसको 10 सेकेंड ही एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो कितना बचा 20 सेकंड। 20 सेकेंड, ठीक है। अब जब ए मान लो यहां पे अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये टाइम है, ए 0 से लेकर के 10 तक एग्जीक्यूट हुआ, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम अगर ए से सीपीयू छीन लें, ए से प्रोसेसर छीन लें और अब बी को डाल दें और बी को भी 10 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करें, तो अब बी कितना बचेगा 10, ठीक। अब फिर से वापस किसके पास चले गए, ए के पास, फिर ए को हमने 10 यूनिट एग्जीक्यूट किया, ए का कितना बचा 10 यूनिट, अब बी को एग्जीक्यूट दे दिया, तो बी को भी 10 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट किया, ये बचा 0, देन आप फिर से किसके पास चले गए, ए को दे दिया और वो भी 10 यूनिट एग्जीक्यूट किया, तो ये 0 10, तो ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 और देन ये 50, तो टोटल 50 यूनिट टाइम में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहां पे भी एक से ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर ले जा रहे हैं एक प्रोसेसर पे या नहीं, ए और बी दोनों एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना एक साथ, यस सर। लेकिन डिफरेंस क्या है, तो मुझे बताओ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इस पॉइंट पे मिल रहा होगा, ये जो पॉइंट है जब एक को हटा के दूसरा ला रहे हो इस पॉइंट पे है, क्यों, यहां पे जब ये वाला जंक्शन वाला पॉइंट था, ए को हटा करके बी ला रहे थे, लेकिन रीजन क्या था, ए आगे एग्जीक्यूट हो सकता था क्या, बताओ, ए आगे एग्जीक्यूट हो सकता था या नहीं, हो सकता था सर, नहीं हो सकता था, क्योंकि उसको तो इनपुट आउटपुट चाहिए, उसको तो डेटा चाहिए डिवाइस से, जब तक वो डेटा आएगा नहीं तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और वो डेटा आ कहां रहा है यहां पे, तो इसलिए आपने बी को शेड्यूल किया ना, मतलब ए का एग्जीक्यूशन आगे पॉसिबल नहीं था, तब आपने बी को शेड्यूल किया, जबकि यहां पे आप बताओ, यहां पे ए से जब बी को ला रहे हो तो क्या ए आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता था, यहां तो कोई आईओ की कंडीशन नहीं थी ना, पर ए को जितना टाइम दिया था कि तुम 10 यूनिट शुरू में एग्जीक्यूट करोगे, वो टाइम एक्सपायर कर गया, इट इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग, वेल time of the processor or processor's time is getting shared by all the programs, जब आपका different programs प्रोसेसर के टाइम को शेयर करें, ठीक है, तो ये कहलाता है मल्टीटास्किंग सिस्टम। और डिफरेंस क्या है, वहां ए के बाद बी को तब ला रहे थे जब ए का एग्जीक्यूशन आगे पॉसिबल नहीं था, क्यों, क्योंकि वो ब्लॉक हो गया था, क्योंकि उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट थी, जबकि यहां मल्टीटास्किंग में ए के बाद बी आया तो है, लेकिन ए आगे एग्जीक्यूट कर सकता था, लेकिन हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने ये स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि हम इसको 10 यूनिट करेंगे, फिर अभी इसको 10 यूनिट, फिर इसको 10 यूनिट, इस तरीके से हम करते जाएंगे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में आया, यस सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसी पे बेस्ड आगे बहुत सारे कंसेप्ट है, इसलिए क्लियर कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मल्टी प्रोसेसिंग देखेंगे और तब हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। क्लासेस मिस मत करना, एक कंसेप्ट से दूसरा कंसेप्ट रिलेटेड है। चलो आज की, हाँ, मैं आज आपको वो फोल्डर शेयर कर दूंगा जिसमें कल और आज दोनों क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है।